to welcome our presenter with her few words. Rashmi ma'am. A very good afternoon to each and every present in this webinar today. Am I audible? My voice is coming? Okay. So I welcome our guest for today who will be taking this session on the topic that we have decided, that is full stack development. And this is a very important topic which I feel that most of the students should understand, because I have seen that some students are good at the back end, some are good at the front end, but finally when you develop a project, you have to learn the server side as well as the application side technology so that you can develop your software properly. So thank you once again, Shivasa, for sparing your valuable time with us. And I hope that this session is going to be very valuable to all our students. As our moderator, Shivangi ma'am, has already told about Shivasa, that he is an expert in desktop technologies, Java, mobile application development, and he is an international certified trainer. I would like this very important information to be shared with all the students who are present today, that he's an international certified trainer. Obviously, the knowledge that he has got is immense, and I'm sure that this webinar is going to benefit many students. Shiva sir has also successfully conducted around 100 plus workshops in different colleges and around 1,000 plus internal workshops in his own concept, that is Shiva Concept Solutions. And I'm sure that in future also, this is just a webinar of say 1 or 1.5 hours, is not sufficient to. How are you? Now I am starting the today sessions, okay, and I am very grateful to Bansal Group of Science and Technology Colleges and all staff members, coordinators, faculties, as well as students, and Mr. Abhay Joshi sir, who has provided to opportunity to me to discuss my knowledge in front of you, okay. And ma'am also introduced about myself in a very better ways, and I am just explaining because the time is very less we have, so we are just going to discuss today workshop agenda, that what things we are covering on workshop, okay, sorry, seminar, and which topic we will discuss. So today we are discussing the most premium topics and the most demanded technologies. Today is that everyone want to learn. I think that web development. Okay, so means web development is now today in within a 2 seconds one websites has been developing, is developing. Okay, then web development market is and their revenue is number one in IT industry. If you are belonging from computer science students and IT students or MCA students, then do you know that the main developments sectors is a web development, and today there have many confusions on web development, that which one is better, which one is not better, which technology we should go, which technology we should learn, okay, which is the most demanded technologies in 2021. This type of confusions you have, mostly most of the students have this type of confusions. I have my own YouTube channels as well as Instagram page there, and they have already many comments will be arise there that we have confusions on which web technology is superior, which one is not, PHP is best or Java is best or .NET is best. Okay, so then these all things I have covered on my today discussion and today today webinars. Okay, then I will share my screen first. Okay, I think that my screen is visible for you.
Okay. Today workshop session is especially conducted on full stack web developers seminars. Okay, this seminars is based on full stack web developers. I am from KangarooSoftwares.net. Kangaroo Softwares is a product-based company which is mostly worked on product softwares. We are not working on service-based applications. We are generally working on product-based applications such as enterprise applications and mobile ERP applications, mobile enterprise. Okay, we are belonging from health and pharma industry basically. And we have one training institutions also in Indore. Okay, we have 3 different branches in Indore, in Palasia, Vijayanagar and Bhawarkua, and we have established from last 10 years here. Okay. Then the first question is that what is full stack? Lots of students have major confusion is that main stack, full stack, mean, MERN. These are the technologies that is the most important technologies today. तो full stack means मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि full stack, what is the full stack? Full stack generally होता क्या है, ठीक है? तो full stack in the sense कि हम full stack के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि full stack is not belonging from development. Full stack आपका सिर्फ development से belonging नहीं है. यदि आप full stack developers बनना चाहते हो then you should knowledge of complete SDLC. आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. देयर मीनिंग इज दैट आपको किस तरीके से आप आज के डेट में आपने सुना होगा कि 90% कंपनीज आर वर्किंग ऑन एजाइल मैथडोलॉजी. 90% कंपनीज आर वर्किंग ऑन एजाइल मॉडल. तो एजाइल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम सभी टाइप के टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करते हैं. हमारे पास ऐसा नहीं है कि पहले जैसा, जैसे पहले की जो कंपनीज हैं वो वाटरफॉल मॉडल पे काम करती थी. वाटरफॉल मॉडल पे आपका जो वर्क होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है. मीन्स सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, एनालिसिस है, उसके बाद डिजाइनिंग है. लेकिन जो एजाइल मॉडल है उसमें जो वर्क होता है वो पूरा एक टीम वर्क होता है. और टीम वर्क में जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको यदि मल्टी स्किल्स है, यदि उसको सभी टीम के अंदर के सभी चीज़ों का नॉलेज है तो दे कैन ईजिली मैनेज इट, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर. क्योंकि आज के डेट में आपको प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आपको समझना है. प्रोजेक्ट के बारे में आपको सिर्फ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट के सभी फेसेस पे आपका कमांड होना चाहिए. तो मैं एक बहुत ही सरल शब्दों में यदि मैं आपको बोलूं कि फुल स्टैक या व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो यू कैन से दैट इफ यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेस देन यू कैन से दैट यू हैव नॉलेज ऑफ फुल स्टैक. ओके, तो फुल स्टैक मीन्स अब हमारा जो सेशन है वो फुल स्टैक डेवलपर इज द डिफरेंट थिंग, फुल स्टैक वेब डेवलपर इज द डिफरेंट थिंग. फुल स्टैक डेवलपर अलग होता है और फुल स्टैक वेब डेवलपर अलग होता है. तो फुल स्टैक वेब डेवलपर्स का मतलब ये है कि जो वेब टेक्नोलॉजी है उसी पे हमारा कमांड होना चाहिए, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए. देन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस अबाउट व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपर्स. फुल स्टैक डेवलपर्स आर एक्सपर्ट इन बोथ. यदि हम वेब की बात करें तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को या सभी लर्नर्स को पता होगा कि वेब एप्लीकेशंस में मोस्टली 2 अलग अलग टाइप के सेक्शंस होते हैं. There are 2 different sections of web applications. The first one is the front end जिसको हम client view बोलते हैं, and the second one is the back end जिसको हम development view बोलते हैं. फ्रंट एंड मीन्स जो हमें क्लाइंट को दिखता है, जो आपको दिखता है. फॉर एग्जाम्पल यदि आप फेसबुक में जाते हैं या facebook.com में जाते हैं तो आपको facebook.com के अंदर जो फ्रंट आपको दिख रहा है, जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड. और जो उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक PHP में बना हुआ है, फेसबुक आपका जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है, लेकिन आप जब तक आप उसके कोड को नहीं देखेंगे, जब तक आप उसके प्रोग्राम को नहीं देखेंगे, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि फेसबुक का बैक एंड क्या है. तो बैक एंड ऑलवेज विल बी हिडन फ्रॉम क्लाइंट्स. तो फुल स्टैक मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड. द फुल स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स अप ए वेबसाइट एंड फुल स्टैक टेक्नोलॉजी इज मोस्टली यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट. मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के डेट में विद इन हर एक 2 सेकेंड के अंदर एक वेबसाइट रिलीज हो रही है. मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं. एवरी 2 सेकेंड 1 वेबसाइट इज रिलीजिंग.
तो जब हर एक 2 सेकंड के अंदर एक वेबसाइट बन रही है तो आप खुद सोचो कि वेबसाइट का कितना बड़ा मार्केट है। मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि वर्ल्ड के अंदर 90% आईटी कंपनीज नाउ वर्किंग ऑन वेब डेवलपमेंट। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा सवाल होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन इज बेस्ट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज बेस्ट और वेब एप्लीकेशन इज बेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू यूजेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, नाउ द वेब एप्लीकेशन इज बेस्ट। सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो वेब एप्लीकेशन है। और वेब एप्लीकेशंस के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को जितने ब्रॉड स्केल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतने अच्छे से आप मोबाइल एप्लीकेशंस में नहीं कर सकते। इसलिए मोबाइल तो सिर्फ नॉर्मल हेलो या हेलो माइक बंद है एक हेलो अब आ रही है? हेलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. yeah Yes, sir. can you audible? yes, sir. Yeah, Yes, okay. sir. Okay. So now I'm discussing about the full stack development importance। okay, full stack development के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी क्लियरिफाई किया कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो मोस्ट इम्प्लीमेंटेड टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, दैट इज मोस्ट इम्प्लीमेंटेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशंस। एवरी 2 seconds one web applications, one website is launching in all over world। ओके, हर एक 2 सेकेंड के अंदर आज के डेट में वेबसाइट क्या हो रही है, लॉन्च हो रही है। तो फुल स्टैक डेवलपर के अंदर का जो प्रोफाइल है ये वेब डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको फुल स्टैक का नॉलेज है तो एज कंपेयर टू जो वेब डेवलपमेंट के अंदर जिनको सिर्फ किसी एक ही फेज का नॉलेज होता है या जिनको सिर्फ फ्रंट एंड या बैक एंड का नॉलेज होता है, तो उनके कंपैरिजन में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से फुल स्टैक का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा कि फुल स्टैक मीन्स दे आर प्रोफिशिएंट इन बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स आल्सो। आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फुल स्टैक में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, किस फ्रेमवर्क की कितनी ज़्यादा डिमांड है। ओके, एज वेल एज अब देखो, अब मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि फुल स्टैक में लैंग्वेजेस के अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज और होना चाहिए। दैट इज द सर्वर। मीन्स आपको सर्वर का नॉलेज होना चाहिए। सर्वर इन द सेंस, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा और कुछ को पता भी नहीं होगा कि मैं सर्वर किसको बोलना चाह रहा हूँ। सर्वर इन द सेंस कि वेब सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने वेब सर्वर सुना होगा, अपाची एक वेब सर्वर है, टॉमकैट एक वेब सर्वर है, यहाँ तक कि हम IIS की बात करें, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज आल्सो द वेब सर्वर। ओके, यदि हम बात करें ग्लास फिश की, ग्लास फिश आल्सो इज द वेब सर्वर। तो सर्वर इन द सेंस कि वेब सर्वर की बात हम कर रहे हैं, नेटवर्क सर्वर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग इन द सेंस कि आपके पास जो RMI प्रोग्रामिंग है, आपके पास कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्रामिंग है, या कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड होस्टिंग इन्वायरमेंट, आपको होस्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, वेब होस्टिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत बताने को ट्राई करूंगा जितना हो सकता है। ठीक है, पर अभी हमारा जो मेन फोकस ये है कि पहले हमें फुल स्टैक डेवलपर की जो कंफ्यूजन है, जैसे बहुत सारे लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट में ऐसा लगता है कि जिसको डिजाइनिंग और डेटाबेस और प्रोग्रामिंग का नॉलेज है वो फुल स्टैक है। वो कंप्लीट फुल स्टैक नहीं है। कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपर वो तब माना जाएगा व्हेन दे हैव नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, networking and hosting, means complete flow of applications from starting phase to last phase. Okay, तो to get to this breadth and depth of knowledge, और मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रेशर लेवल पे फुल स्टैक डेवलपर्स इतने आसानी से नहीं बन सकता। ठीक है, फ्रेशर लेवल पे आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर्स नहीं बन सकते। हाँ, ये फुल स्टैक डेवलपर्स के अंदर आप एज अ इंटर्न, एज अ एंटर कर सकते हैं।
पर जब तक आपको 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा कंपनीज के अंदर, उतना अच्छे से आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मोस्ट फुल स्टैक डेवलपर्स विल हैव स्पेंट मैनी ईयर्स वर्किंग इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट रोल्स. दे आल्सो टेंड टू बी वेल वर्स्ड इन बोथ बिजनेस लॉजिक एंड यूजर एक्सपीरियंस. तो आपको इसमें दोनों में कमांड होना है. आपको बिजनेस लॉजिक का नॉलेज भी होना चाहिए और यूजर एक्सपीरियंस मतलब डिजाइनिंग का नॉलेज भी होना चाहिए. They are not only well equipped to get hands on but can also guide and consult on strategy too. ठीक है. साथ में सब देखो, प्रोजेक्ट बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट में प्रोग्रामिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है. जैसे आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग होता है. मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट फेस नहीं होता. सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग. सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो होता है टेक्निकल आर्किटेक्ट का, टेक्निकल सोल्यूशन या सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर का सोल्यूशन बताता है कि आपके प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, आपके प्रोजेक्ट का क्या बेटर एस्पेक्ट्स होगा. इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशंस, कि दैट इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट. मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो फेज है या टेक्निकल डिजाइनिंग, टेक्निकली उस चीज़ को डिजाइन करने का जो फेस है, ये पार्ट आपके को अच्छे से आना चाहिए. और ये पार्ट इनिशियल लेवल पे नहीं होता. जब आपका डेवलपमेंट पे एक्सपीरियंस हो जाता है 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कंसल्टेंट, जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिसिस के प्रोफाइल पे जो काम करते हैं, या जो टेक्निकल आर्किटेक्ट या सोल्यूशन आर्किटेक्ट के प्रोफाइल पे जो वर्क करते हैं, वो इस पे फेस पे काम करते हैं. तो फुल स्टैक में वो भी आता है. फुल स्टैक मतलब आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. अब देखो, ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने को ट्राई किया है कि जो फुल स्टैक डेवलपर्स, आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से बेटर आपका जो ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज द बेटर. ओके. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर्स में आपको सबसे पहले किसका नॉलेज होना चाहिए, वेब डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए. वेब डिजाइनिंग इन द सेंस HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड jQuery. ओके. इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए. प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए. साथ में आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला सर्वर का नाम क्या है, यदि हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्वर का नाम है AWS. ठीक है. अमेजॉन की जो AWS जो है आपको पूरा क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है, और क्लाउड सर्वर ही आज के डेट में सर्वर में कंपनीज के अंदर यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. जितने भी एप्लीकेशंस आज के डेट में आप यूज़ करते हैं मोस्टली, वो सभी के सभी AWS या क्लाउड सर्वर पे ही होस्टेड है. इसके अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड SEO. SEO मीन्स डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जैसे सर्च इंजन, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. क्योंकि देखो, वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान काम है. वेबसाइट कोई भी बना सकता है. मैं यदि आपको बोलूँ तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री डोमेन्स मिलते हैं, फ्री होस्टिंग मिलते हैं, फ्री साइट्स हैं जहाँ से आप, जैसे बहुत सारे साइट्स हैं, आपने नेट पे यदि आप सर्च करोगे फ्री साइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग, तो आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे. जैसे wix.com करके साइट है. wix.com जो साइट है वो, उसके अंदर आप पूरा वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बना सकते हो. पर SEO का जो वर्क है वो आपको, जब तक आप किसी भी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग या SEO नहीं करेंगे, तब तक आप उस साइट की रैंकिंग नहीं बढ़ा सकते. ठीक है. जैसे आप SEO का सबसे बेटर एग्जांपल ये है कि जैसे आप गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं कि बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन भोपाल या बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन इंदौर, तो आपको देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज तो बहुत सारी हैं भोपाल में, बहुत सारे हैं इंदौर में, लेकिन आपको वही कंपनीज मिलती हैं सबसे टॉप 1 पे जिनका डिजिटल मार्केटिंग बेटर है. तो SEO इज द आल्सो द पार्ट ऑफ फुल स्टैक. सपोर्ट मतलब अभी आपने सुना होगा रिसेंटली DevOps जो एक टेक्नोलॉजी है, DevOps. DevOps जो है, DevOps एक टूल है जो सपोर्टिंग के लिए यूज होता है. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है. साथ में कंटेंट मतलब हो गया आपको ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो. ठीक है. साइट का जो कंटेंट है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए.
तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक जो फ्रीलांसर डेवलपर होता है, यदि हम बोलते हैं कि जो फ्रीलांसर डेवलपर है उसको फुल स्टैक होना बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो यदि इंडिविजुअल कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता है तो यदि वो फुल स्टैक नहीं है तो उसको फिर दूसरे फ्रीलांसर से या दूसरे एप्लीकेशन डेवलपर से बात करनी पड़ेगी। पर यदि उसको सभी चीज़ों का नॉलेज है, उसको फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर, एसईओ, सपोर्ट, कंटेंट, देन दे आर कंप्लीटली फुल स्टैक। स्टैक मतलब जैसे आपने स्टैक सुना होगा, स्टैक क्या है? एक कंटेनर होता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस पे काम करता है। वैसे ही वो जो स्टैक है, यहाँ पर भी स्टैक का मतलब कंटेनर है। एक ऐसा डेवलपर जिसके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी का एक कंटेनर है, जिसके पास फ्रंट एंड का नॉलेज भी है, बैक एंड का नॉलेज भी है, डेटाबेस का नॉलेज भी है, सर्वर का नॉलेज भी है, एसईओ का नॉलेज भी है, सपोर्ट का नॉलेज भी है, कंटेंट का नॉलेज भी है, तो हम बोल सकते हैं कि उस डेवलपर्स को हम बोलते हैं फुल स्टैक। ओके, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल स्टैक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम फुल स्टैक डेवलपर्स क्यों बने? वाई बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर्स, वाई बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर्स? तो फुल स्टैक डेवलपर्स यदि आप बनते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो एज कंपेयर टू जो नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटी है, यदि आप एक फुल स्टैक डेवलपर्स अपने रिज्यूम में मेंशन करेंगे कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट का दोनों का नॉलेज है, तो आपको जॉब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो नॉर्मल कैंडिडेट से 70 to 80% बेटर मिलेगी, और 70 to 80% आपको पैकेज में भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो जो फुल स्टैक डेवलपर का जो पैकेज ग्रोथ है, जो सैलरी ग्रोथ है, वो एज कंपेयर टू नॉर्मल डेवलपर से 70 to 80% बेटर है। ठीक है, तो गिवन द चॉइस स्पेशलाइज्ड इन फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। जैसे पहले अभी आपने सुना होगा कि पहले ऐसा चलता था कि स्पेशलाइजेशन की डिमांड थी, या ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑन जावा, ही इज अ स्पेशलिस्ट ऑन HTML, he is a specialist on PHP, he is a specialist on this. ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन इज द डिफरेंट। आज भी फुल स्टैक में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि हमें यदि जावा का नॉलेज भी है, .NET का नॉलेज भी है, PHP का नॉलेज भी है तो हम फुल स्टैक है। बिल्कुल गलत बात है, वो फुल स्टैक नहीं है, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के नॉलेज है इनको। ठीक है, वो मल्टी स्किल्स या मल्टीपल टेक्नोलॉजीज बेस्ड डेवलपर्स बोले जाएंगे, वो फुल स्टैक नहीं बोले जाएंगे। फुल स्टैक का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि भले आपको एक ही टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, पर उस टेक्नोलॉजी के अंदर के जितने भी उसके साइकिल में जितने भी चीज़ें यूज़ होती है, उसके सीक्वेंस में, उसके फ्लो में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। मीन्स आपको एनालिटिकल स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, डिजाइनिंग स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक। इसको हम बोलते हैं फुल स्टैक। ओके, जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा कि जितने भी MNCs या जितनी भी बड़ी कंपनीज है, सब कुछ ऑटोमेशन में काम हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है। मतलब आपको जैसे पहले क्या करना पड़ता था कि हमें इंस्टॉलेशन मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है, डेवलपमेंट हमें मैनुअली करना पड़ता था, ठीक है, तो टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, टेस्टिंग हमें पहले मैनुअली करना पड़ता था, पर आजकल सब चीज़ों में ऑटोमेशन आ चुका है। तो वैसे ही फुल स्टैक के अंदर भी ऑटोमेशन आ चुका है कि टेस्टिंग भी आपका पूरा ऑटोमेशन के थ्रू होगा। डेवलपमेंट में आपको प्रोग्रामिंग, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारे आपको ऑटोमेटेड टूल्स मिल चुके हैं। कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जो डेवलपमेंट का फेस है वो भी बहुत कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है, डिजाइनिंग का फेस भी ऑटोमेटेड हो चुका है। डिजाइनिंग में भी आपको बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज मिलती हैं जहां पर आप बहुत आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हो। तो इसका कंसर्न ये है कि आज के डेट में फुल स्टैक डेवलपमेंट से फायदा आपको ये है, ये बेनिफिट है कि आपको का जो वर्क है उसका पूरा प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज होगा, और मल्टीपल प्रोफाइल्स के करस्पॉन्डिंग आप एक सिंगल प्रोफाइल पे भी बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। ओके, it goes back to the value of being a T-shaped person. You are more valuable to a team when you are able to address and discuss both aspects of the web development process and the bridge that is connected. ठीक है, तो आपको यदि फुल स्टैक का नॉलेज है तो आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे दूसरी टीम से आप आसानी से बात कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, वन डेवलपर्स हु कैन रीडली असेस एंड कम्युनिकेट हाउ अ वेबसाइट शुड लुक। ठीक है, जैसे एक डेवलपर जो होता है वो ही समझ सकता है। जैसे एक डेवलपर से आप देखना, डेवलपर से कभी पूछना कि वेबसाइट कैसे दिख रही है, तो वो उस वेबसाइट का पूरी तरह से उसका एनालिसिस नहीं कर पाएगा यदि उसको सिर्फ डेवलपमेंट ही आता है। यदि उसको डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का दोनों का नॉलेज है
तो वो उसको समझ सकता है कि हाँ ये इस वेबसाइट के अंदर का डेवलपमेंट मैं इस तरीके से कर, डिजाइनिंग इसकी ऐसी है तो मुझे इसका जो कोडिंग है उस तरीके से करना है, या इसकी कोडिंग ऐसी है तो मुझे इस तरीके का इसका डिजाइन करना है, या इस डोमेन का है तो उसका डिजाइनिंग ऐसा होना चाहिए। क्योंकि बिना डोमेन नॉलेज के आप डिजाइनिंग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डोमेन मतलब इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आपको कोई वेबसाइट किसी क्लाइंट ने दिया तो सबसे पहले आप यही उससे पूछते हो कि आपका जो बिलोंगिंग क्या है, आप किस डोमेन से रिलेट कर रहे हो, आप रियल एस्टेट डोमेन पे हो, आप एजुकेशन डोमेन पे हो, आप जॉब असिस्टेंस डोमेन पे हो। तो डोमेन का नॉलेज यदि आपको है, साथ में डिजाइनिंग स्किल्स का नॉलेज है, तो आप डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो वही चीज एक एडवांटेज है, एक स्पेशल एडवांटेज है फुल स्टैक वेब डेवलपर्स की, कि ही इज अ इंडिपेंडेंट फॉर ऑल फेसेस, ही कैन डिस्कस विथ ऑल टाइप ऑफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फेसेस। यदि उसको टेस्टिंग का नॉलेज है तो वो टेस्टिंग भी अपने एप्लीकेशंस में कर करके मैनेज कर सकता है। और यदि टेस्टर्स को कोई कंफ्यूजन है या टेस्टर्स के अंदर कोई टेस्टर्स को कुछ चीज़ें डिस्कशन करना है डेवलपर से, तो वो टेस्टिंग पैटर्न में उससे डिस्कस कर सकता है। तो इससे टीम का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जस्ट 50% टाइम क्या है बचता है। हैंस कंपनी गिविंग द प्रायोरिटी टू फुल स्टैक वेब डेवलपर्स। अब मैं आपको देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि टेक्नोलॉजी करने का आपका जो गोल होता है, उसका मेन जो गोल है वो ये है कि इसके अंदर पैकेज क्या है। जैसे आप PHP के आपके सामने बोला जाता है कि PHP करो या जावा करो या .NET करो, तो आपसे यदि इन जनरल क्वेश्चन यदि कोई भी पूछता है कि आप PHP क्यों करना चाहते हो या जावा क्यों करना चाहते हो या .NET क्यों करना चाहते हो, तो आप उसका आंसर यही देते हो कि PHP में जॉब आसानी से लग जाती है। जावा क्यों करना चाहता है, सामने वाला ये बोलता है कि जावा हम इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज जावा के अंदर हमें हायर पैकेज मिलता है। .NET हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि .NET जो है मल्टीनेशनल कंपनीज इज वर्किंग ऑन .NET एंड जावा, देन दे आर पेइंग गुड स्केल सैलरी। तो मैं आपको डिमांड बताना चाहता हूं कि द डिमांड फॉर द फुल स्टैक डेवलपर्स इज ग्रोइंग ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। अकॉर्डिंग टू अ सर्वर, द डिमांड फॉर द फुल स्टैक डेवलपर इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 13% बाय 2025। ठीक है, 2025 तक आपका जो एस्टिमेशन है फुल स्टैक डेवलपर्स का वो 13% और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। दिस रेट इज एक्चुअली फास्टर देन द एवरेज रेट, ये और ज्यादा भी हो सकता है। एन एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर कैन मेक अराउंड $93,402 per year. This is not for India, this is for overseas. Okay, here is some statistics of survey which is taken by Stack Overflow. आपने सुना होगा, Stack Overflow ने एक सर्वे किया और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उसने ये गाइडलाइन दिया कि फुल स्टैक डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है वो क्या है। एंड दिस सर्वे इज कंडक्टेड अमॉन्ग 64,000 डेवलपर्स। ठीक है, 64,000 डेवलपर्स के बीच में रिसर्च किया गया। तो मैं आपको यदि यदि आपके दिमाग में ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया या सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस फील्ड में है, तो उसका केवल एक ही आंसर है, फुल स्टैक डेवलपर्स। यदि आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट टूल्स के नॉलेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोफाइल पे यदि आप काम करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के कंपैरिजन में और ज़्यादा होने वाली है। ओके, हाउ मच फुल स्टैक डेवलपर्स आर इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, हर एक कंट्रीज का मैंने यहाँ पे चार्ट आपको बताया है कि फ्रंट एंड डेवलपर्स है, बैक एंड डेवलपर्स और फुल स्टैक डेवलपर्स जो है। फुल स्टैक डेवलपर्स का जो रेशियो है मेरे ख्याल से वो हर जगह आपको हायर ही मिलेगा। ठीक है, कुछ जगह आपको सिमिलर मिल सकता है, पर कुछ हर एक एरिया में आपको अलग अलग ही मिलेगा। तो दैट इज द सर्वे फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ठीक है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, इसमें इंटरेस्टिंग एरिया भी है कि हम डिफरेंट एरियाज पे काम कर सकते हैं। तो इसको आप बन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, आप फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर आपको सबसे पहले तो किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि फ्रेशर लेवल पे फुल स्टैक डेवलपर बनना नामुमकिन तो नहीं बोल सकता, पर इतना आसान नहीं है। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर्स वही बन सकता है जो इंडस्ट्री में 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर सर्वाइव कर चुका होगा, जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, जिसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि यू विल नीड टू गेदर विथ सम ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। आपको इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। यू विल नीड टू लर्न बोथ। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको दोनों चीज़ें सीखनी होगी।
आप अकेले डिजाइनिंग सीख करके अपने आप को ये नहीं बोल सकते। जैसे आज के डेट में मैं बहुत सारे कैंडिडेट का रिज्यूम देखता हूँ, आपको ये डाउट रहता है कि आपको कोर जावा का नॉलेज है तो आपको कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। कोर जावा में आपको यदि कॉलेज में जो कंपनीज आती है, ठीक है, वो कंपनीज के अलावा यदि आप ऑफलाइन जाते हो या आज के डेट में जो कॉलेज में भी कंपनीज आती है वो आपको कोर जावा के बेसिस पे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी, आपको C++ के बेसिस में कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं करेगी। तो आपका फिर दिमाग में होगा कि आपका सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आज का जो ट्रेंड में जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड में चल रही है, मतलब कोर जावा ठीक है आपने सीखा है, बहुत अच्छी बात है, पर जावा में यदि आप अपने आप को स्पेशलाइज्ड करना चाहते हो तो आपको जावा का फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए। फ्रेमवर्क इन द सेंस कि जावा में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है स्प्रिंग बूट, BOOT, स्प्रिंग बूट। ठीक है, आप इंटरनेट में सर्च करना स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग MVC एंड हाइबरनेट। यदि आपको इन तीनों फ्रेमवर्क का नॉलेज है, साथ में आपको जावा का नॉलेज है, आपको डेटाबेस का नॉलेज है और आपको डिजाइनिंग का नॉलेज है, तो आपको कोई भी मतलब आपका सेकेंड या थर्ड इंटरव्यू या हो सकता है कि पहले इंटरव्यू में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसलिए आज के डेट में नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी भी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। उनको सिर्फ कोर जावा या ज़्यादा से ज़्यादा C++ और ये जो प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करते हो ये प्रोजेक्ट नहीं होते, ये प्रोग्राम होते हैं। तो जनरली आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम आपका प्रोजेक्ट वो होना चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम मैं यदि बात करूं तो 20 से ज़्यादा टेबल होना चाहिए। यदि आपके प्रोजेक्ट में 20 से कम टेबल है तो आप समझो कि वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल प्रोजेक्ट हो गया, वो बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट हो गया। ओके, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड लैंग्वेजेस, यदि आपको फ्रंट एंड स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है, आप देखो अभी भी ऐसी प्रोफाइल कंपनी में है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वेब डिजाइनिंग की प्रोफाइल फिनिश हो गई है, लेकिन उसमें आपका ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। यदि अकेले आप सिर्फ डेटाबेस सीख करके किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब डेटाबेस में काम करने वाली कंपनियां आप तो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से 1% केस में ही बच चुकी हैं जो सिर्फ अकेले डेटाबेस के बेस में आपको हायर करेंगे। कोई भी कंपनी आपको सिर्फ अकेले डेटाबेस के बेस में हायर नहीं करेगी। ठीक है, पहले अलग था क्योंकि पहले स्पेशलाइजेशन मॉडल पे वर्क होता था। पहले की कंपनियां डिजाइनर अलग रिक्रूट करती थी, डेवलपर अलग रिक्रूट करते थे, डेटाबेस डेवलपर्स अलग होते थे, QA की टीम अलग होती थी, मेंटेनेंस की टीम अलग होती थी। क्योंकि पहले की मैंने आपको पहले पॉइंट पे ही क्लियर कर चुका हूं कि एजाइल अप्रोच इज द डिफरेंट, वाटरफॉल मॉडल अप्रोच इज द डिफरेंट। पहले की जो कंपनियां थी दैट इज वर्किंग ऑन वाटरफॉल मॉडल, आज का जो वर्क है वो एजाइल मॉडल का है। और एजाइल मॉडल में आपको पर्टिकुलर आपको सभी टाइप के नॉलेज, यदि आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आपको कंबाइंड नॉलेज होगा, उतना आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, as well as the ins and outs of databases and storage. Okay, in fact मतलब फ्रंट एंड बैक एंड के साथ यदि आपको डेटाबेस का नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, और इसके साथ साथ यदि आपको डेटाबेस, इसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फॉर्मेट करते भी नहीं आता, मतलब उनको फॉर्मेट करने के लिए भी अलग से 200 या 300 रुपए की दुकान शॉप ढूंढते हैं कि मिल जाए कोई कंप्यूटर शॉप जो हमारा फॉर्मेट कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है, आपको सर्वर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, परमिशंस, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग, इन पे भी आपको फोकस करना है। In fact, you can't just study to become a full stack developers. It's all about concept. अब यदि आप सोचोगे कि आप कहीं पे कोर्स ज्वाइन कर लो कि फुल स्टैक डेवलपर का कोई कोर्स होता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फुल स्टैक डेवलपर का कहीं पे कोई भी कोर्स नहीं होता। फुल स्टैक डेवलपर्स आप अपने इंटरेस्ट से बनते हो। आपके अंदर एक पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे डिजाइनिंग भी अच्छे से सीखना है, डेवलपमेंट भी अच्छे से सीखना है, मुझे टेस्टिंग का भी इंटरेस्ट है, साथ में मुझे सर्वर का और नेटवर्किंग का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो तब आप फुल स्टैक डेवलपर बन पाओगे। तो फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए कोई प्रोग्राम आप एक दिन में नहीं बन सकते क्योंकि फुल स्टैक में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप एक महीने में नहीं सीख सकते। जो लोग बताते हैं 30 दिन में जावा सीखिए, 20 दिन में .NET सीखिए, 25 दिन में PHP सीखिए, आप सीख ही नहीं सकते। सीखने के लिए आपको जिस तरीके से आप इंजीनियरिंग के लिए 4 साल देते हो, वैसे टेक्नोलॉजी आपको 30 दिन में कैसे आ जाएगी। टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 6 मंथ आपको बहुत अच्छे से, बहुत
स्ट्रांगली आपको 6 मंथ देना होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। और मैं ये नहीं बोलना चाहता कि टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई इंस्टीट्यूशन ही ज्वाइन करो, कोई कोचिंग ही ज्वाइन करो। आप टेक्नोलॉजी, आजकल इतने सारे मीडिया है, इतने सारे माध्यम है कि आप बहुत आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजी को खुद से सीख सकते हो। बहुत सारे आपको कंटेंट मिल सकते हैं। पहले तो कंटेंट इतना नहीं मिलता था, आजकल आप गूगल में सिर्फ एक वर्ड टाइप करना, आपको उसके पूरे A to Z चीजें मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आप यदि खुद से सीखोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर यदि आपको बहुत इजी वे में सीखना है तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, फुल स्टैक डेवलपमेंट की कोर्स नहीं होता। फुल स्टैक डेवलपमेंट एक एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। ऑटोमेटिकली आपको जैसे जैसे वर्क करने लग जाओगे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपको फुल स्टैक, आपके स्टैक में नई नई चीजें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा। लिंक्डइन एक बहुत ही कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप देखना कि वहां पर वो टेक्नोलॉजी पूछता है आपसे कि आपको कौन कौन से, तो वो एक फुल स्टैक टेक्नोलॉजी है, फुल स्टैक बना के रखता है। उसमें आपको जो जो नॉलेज है वो पूरा टेक्नोलॉजी देखता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा जो रिज्यूम फिल्टर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो लिंक्डइन से हो रहे हैं। तो आपने जो भी काम किया है आपको शो करने की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपनी में रिज्यूम लेके घूमते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये तरीका आप चेंज करिए। अब ये तरीका फिनिश हो चुका है। अब आपको कंपनी में रिज्यूम लेके नहीं घूमनी है, आपको अपने प्रोफाइल को इंप्रूव करना है। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर के अपने आप को इंप्रूव करिए। रिकमेंडेशंस आप उसमें लिंक्डइन सबसे बेस्ट होता है। हाँ, लिंक्डइन इज द बेस्ट। ठीक है, लिंक्डइन में जाकर के आप इंप्लीमेंट करिए। साथ में गिटहब के अंदर, गिटहब एक पर्टिकुलर, आपको github.com का नॉलेज यदि है तो गिटहब इज द बेस्ट टूल्स टुडे टू इंप्लीमेंट योर प्रोजेक्ट। मिलता है ना सर? व्हाट? हाँ जी बताइए। बट गिटहब में तो पूरा कोड मिलता है, हाँ, प्रोग्रामिंग कोड मिलता है गिटहब में। तो आप दे सकते हैं प्रोग्रामिंग कोड, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग कोड प्रैक्टिस के लिए यदि आपने जो प्रोग्रामिंग कोड बनाया है उसको यदि आप दे दोगे, मींस अपन गिटहब से किसी दूसरे का भी कोड उठा सकते हैं, अपना भी कोई कोड उठा सकता है अगर उसने परमिशन अलाउ की है जब। देखो एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, नॉट फॉर लास्ट इंप्रेशन। आप गिटहब में भले 10 प्रोजेक्ट भी रखोगे तो इंटरव्यूज तो आपका होगा ही ना। जब आप इंटरव्यूज के सामने आओगे तो हम तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपका जो गिटहब का पहला प्रोजेक्ट का पहला रिपोजिटरी था उसके अंदर आपने जो प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं बताइए उसमें क्या क्या कोड आपने लिखा है। तो ऑटोमेटिकली देखो, ये मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू उसमें भी होगा। कोई भी कंपनी सिर्फ गिटहब में प्रोजेक्ट देख करके आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, आपको उस कोड को एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। ओके, क्लियर हो गया आपको? ओके सर, ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मेरा कंसर्न यही है कि आप इस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोजेक्ट वर्क को वहां पे रख सकते हैं और उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। अपने रिज्यूमे में आप 2 चीज तो बिल्कुल लिखना मत भूलिए। पहला, लिंक्डइन प्रोफाइल का अपना जो यूआरएल है वो, और दूसरा अपना गिटहब का जो यूआरएल है वो। ये दोनों चीजें आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक्चुअली क्या है, जैसे गिटहब में यदि आप जाओगे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिटहब आज के डेट में तो जीयूआई प्लेटफॉर्म भी है। पहले तो गिटहब में क्या था कि कमांड के थ्रू ही आपको पूरी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी। आजकल तो गिटहब इतना सिंपल हो चुका है कि आप जैसे गूगल डॉक्स चलाते हो वैसे गिटहब चला सकते हो। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप अपना प्रोफाइल बनाइए और यहाँ पे रिपोजिटरी बनाइए और आप यहाँ से अपने आइटम्स यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, मेरा खुद का भी गिटहब में अकाउंट है। ठीक है, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन के नाम से मेरा गिटहब का अकाउंट है। मैंने अपने गिटहब में जितने भी मेरा सेशन होता है, जैसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग जो भी है, सर्वलेट, स्विंग, कंप्लीट, पीएचपी, जेडीबीसी, एचटीएमएल, ये जो टॉपिक्स होते हैं जो मैं डिस्कशन करता हूँ वर्कशॉप में, सेमिनार में, या कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ सेशन भी लेता हूँ, तो वो पूरा मैंने अपने गिटहब में आर लैंग्वेज के बारे में भी जितने भी सेशन मैंने लिए हैं, हाइबरनेट के बारे में जो भी सेशन है, तो आपको यदि देखना है कि आप मेरे जो कोड, यदि आपको जावा में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग के भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या कंटेंट यहाँ पे डाल के रखे हैं, तो मेरे गिटहब के अकाउंट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप, जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट भी रखा है स्मार्ट ईआरपी, ये प्रोजेक्ट है, ये लाइव प्रोजेक्ट है पूरा। इस प्रोजेक्ट का मैंने, अब इसमें पूरा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा पर एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम एक ईआरपी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो दैट इज द गिटहब। ओके, तो आप भी कुछ भी नहीं, सिंपल रिपोजिटरी होता है, इसमें रिपोजिटरी बनाइए। रिपोजिटरी में ऑप्शंस भी है, जैसे आपको कोई भी चीज प्राइवेट है, आप चाहते हो नहीं कोई नहीं देख सके, तो आप इसको प्राइवेट कर दीजिए। यदि आपको किसी को पब्लिकली शो करना है, पब्लिकली कर लीजिए। आप डाउनलोडिंग की परमिशन हटा दोगे, डाउनलोडिंग भी नहीं होगा।
तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको रीड ओनली मोड में रखोगे सिर्फ रीड ओनली मोड में होगा। तो गिटहब आपको एक कंप्लीट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये मतलब वर्जन कंट्रोल के लिए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिपोजिटरी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला गिटहब इंप्लीमेंट होता है। गिटहब में थोड़ा सा लिमिटेशन ये है कि ये 25 MB तक का ही डेटा लेता है, इससे ज्यादा का डेटा आप नहीं ले सकते। तो इसका मैं एक अल्टरनेटिव आपको बता रहा हूं, बिट बकेट। मेरे ख्याल से बिट बकेट कुछ लोगों को पता होगा, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने बनाया है इसको, ये गिटहब के जैसा ही पूरा क्लोन है गिटहब का, और इसमें आप अनलिमिटेड डेटा रख सकते हो। जैसे आप आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने कंप्यूटर्स में डेटा रखते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कोई जरूरत नहीं आपको कंप्यूटर्स में डेटा रखने की, आप आज की डेट में क्लाउड का यूज करिए, बिट बकेट का यूज करिए, गिटहब का यूज करिए, और यहां पर आप अपने कोड को रखिए, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो ये मैंने एक डायग्राम से समझाया है कि फ्रंट एंड में मोस्टली फ्रंट एंड का नॉलेज तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बस यही फ्रंट एंड नहीं होता। अब ये जो फ्रंट एंड है ना, 2020 के बाद फ्रंट एंड का नाम चेंज हो चुका है। अब फ्रंट एंड HTML का नॉलेज है तो दैट इज नॉट अ फ्रंट एंड, आपको सिर्फ CSS का नॉलेज है दैट इज नॉट अ फ्रंट एंड, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज दैट इज नॉट अ फ्रंट एंड। अब ये फ्रंट एंड आउटडेटेड हो चुके हैं, आप कोई HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस नहीं बनाती कंपनीज, ठीक है। कंपनी का जो वर्किंग फ्रंट एंड है वो है एंगुलर JS, आपको एंगुलर JS में या रिएक्ट JS, ये दोनों फ्रंट एंड है। यदि आपको आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड फ्रंट एंड क्या चल रहा है, रिएक्ट JS। रिएक्ट JS जॉब इन इंडिया आप सर्च करना, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको एज अ फ्रंट एंड में यदि आपको देखोगे तो आपको रिएक्ट JS में मिलेगा। रिएक्ट JS के बाद सेकंड नंबर में आता है एंगुलर JS। बैक एंड के अंदर आपको रूबी लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, ROR में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब मैं ये भी एक सजेशन देना चाहता हूं स्टूडेंट्स को, जो लोग मेरा सेशन सुन रहे होंगे, कि कभी भी आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं करनी है जो बहुत सारे लोग कर रहे हो। यदि आप बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं ना, यदि वो चीज आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप वो चीजें करो जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, जैसे रूबी। अब रूबी लैंग्वेज आप देखना, रूबी लैंग्वेज जो है, रूबी ऑन रेल्स, ROR की बात कर रहा हूं। यदि आप ROR लैंग्वेज की जॉब सर्च करोगे भोपाल में ही आपको, या इंदौर में ही, या कि आपको पुणे में, बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी, और वहां पर 5 पोस्ट होंगे, अप्लाई करने वाले आपको 10 मिलेंगे। पर जावा के अंदर 5 पोस्ट होंगे, अप्लाई करने वाले आपको 500 लोग मिलेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी चूज कीजिए जिसमें आपको बहुत जल्दी जॉब मिले और कम से कम आपको एफर्ट लगाना पड़े। तो रूबी ऑन रेल्स इज द बेस्ट। जावा इज एवरग्रीन। पाइथन इज ऑल्सो, आज के डेट में पाइथन भी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पाइथन का सबसे खास बात यह है कि इसमें डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। क्योंकि पाइथन यदि आप जावा में बनाओगे तो जावा में डेटा साइंस इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, जावा में मशीन लर्निंग इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन पाइथन में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। इसलिए अभी जो सेकंड चॉइस है जावा, अब जावा इज नॉट अ मोस्ट पॉपुलर टुडे। जब अब जावा मोस्ट पॉपुलर नहीं है, मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं, जावा का जो क्रेज है वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में अच्छे क्रेज पे जा रही है? पाइथन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स का बहुत अच्छा मार्केट है, PHP भी अच्छा है। जावा और .NET इनका थोड़ा सा मार्केट डाउन होने का रीजन ये है क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंस सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। हालांकि जावा में डेटा साइंस और ML के लिए अभी एक फ्रेमवर्क लॉन्च होने वाला है जो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हो जाएगा, पर अभी तक इनके पास किसी भी टाइप का, इस टाइप का कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं है जिससे वो डेटा साइंस और ML को इंप्लीमेंट कर पाए। ओके, अब इसके बाद मैं डेटाबेस की बात करता हूं। MySQL इज द फर्स्ट पोजीशन ऑन डेटाबेस इन वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस MySQL है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर ये एंड्रॉइड नहीं है सर फ्रंट एंड में? देखो, मैं वेब फुल स्टैक वेब डेवलपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर, ओके। मैं, मेरा जो आपका आज का जो टॉपिक है ना, ये फुल स्टैक वेब डेवलपर पे है, तो मैं वेब की चीजें बता रहा हूं आपको आज कि वेब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके सर, मैं भूल गया था सर, मुझे लगा सॉफ्टवेयर का था। ओके। इन डेटाबेस MySQL, MongoDB, CouchDB, ये भी CouchDB जो है ये भी बहुत अच्छा डेटाबेस है, बहुत ही लाइट वेट है और ये अभी बहुत चल रहा मार्केट में। MS SQL, ये चारों डेटाबेस हैं। अब आप सोच रहे हो कि Oracle क्यों नहीं है, तो मैं आपको फ्री टूल्स की बात कर रहा हूं, ओपन सोर्स की बात कर रहा हूं। Oracle ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। Oracle इज नॉट अ ओपन सोर्स। Oracle जो है ये एक एंटरप्राइज कंपनी है और Oracle के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो पैड नहीं है। कभी भी आप अपने एप्लीकेशन में Oracle यूज करके कभी लॉन्च मत कर देना। नहीं, Oracle की कंपनी से
आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ओरेकल इज नॉट अ फ्री, ठीक है, ओरेकल इज अ पेड टूल्स, बट ओरेकल ने एक फ्री टूल्स दिया है कि यदि आपको फ्री में काम करना है, ओपन सोर्स पे काम करना है, तो आप MySQL यूज कर सकते हो। MongoDB इज द कंप्लीटली फ्री, यू कैन यूज। CouchDB इज फ्री। MS SQL का कुछ एडिशन फ्री है और कुछ पैड है। अब वर्जन कंट्रोल्स के लिए आपको, जैसे मैंने आपको GitHub का नाम बताया, इनका काम होता है रिपोजिटरी सिस्टम्स है, जहां पर आपको प्रोजेक्ट रखना है। आपको अपने मशीन पे प्रोजेक्ट कभी नहीं रखना है, प्रोजेक्ट बना करके आपको वर्जन GitHub के अंदर उसको लॉन्च कर दो या ग्रेवेंट के अंदर कर दो, ठीक है, डिबग के अंदर कर सकते हो, सब वर्जन, ये सभी के सभी क्या है, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, अब ये भी बहुत चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स मतलब प्रोजेक्ट का जहां पे रिसर्च क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो इसके लिए बेसकैम्प, आप नेट में कभी सर्च करना बेसकैम्प एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट का पूरा मैनेज, मतलब उसमें डेवलपर्स, टेस्टर्स, ठीक है, जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सब के सब बेसकैम्प के अंदर ऐड हो सकते हैं। जीरा, ट्रैलो, रेडमाइंड, टीम वर्क, ये सभी के सभी टूल्स हैं जिनका यूज हम इसमें कर सकते हैं। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग फॉर फुल स्टैक। आप पहले अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को अच्छा करिए। आजकल जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी मोस्ट डिमांडेड है। यदि आपको जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है तो वेब में आपको कुछ, मतलब वेब के अंदर आप मतलब बोल सकते हो कि वेब में आप इतना वर्क नहीं कर सकते। जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज तो वेब डेवलपर को होना ही चाहिए। इसमें jQuery, रिएक्ट और एंगुलर का यूज होना चाहिए। बैक एंड लैंग्वेजेस के अंदर नोड, जावा, पाइथन, रूबी, ठीक है। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको नोड भी सीख लो, जावा भी सीख लो। बैक एंड लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आप सीखो, या कि आपको नोड जेएस का नॉलेज होना चाहिए, या कि जावा का, या कि पाइथन का, या कि रूबी का, या C# का, या C++ का। बैकएंड में सभी लैंग्वेज नहीं सीखनी है आपको। डेटाबेस में कोई एक लैंग्वेज पे आप डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस पे आप कमांड कर सकते हो। इसके बाद HTTP एंड REST, ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो सबको पता होगा। पर HTTP एंड REST क्या होता है? REST मतलब होता है वेब API। आज के डेट में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, रेस्टफुल API। आपको रेस्टफुल एप्लीकेशंस, मतलब जैसे आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो, अब एंड्रॉइड फोन में, एंड्रॉइड के अंदर यदि इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो आपको पता है कि एंड्रॉइड किसी काम का नहीं होता। आपका फोन किसी काम का नहीं है यदि उसमें नेट नहीं चल रहा है। तो नेट चलाने से आपके फोन के अंदर के सभी ऐप क्यों चलने लग जाते हैं? क्योंकि वो रेस्टफुल API को कंज्यूम करना चालू कर देते हैं। तो आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर, iOS फोन के अंदर पूरा का पूरा क्या है? रेस्टफुल API है। यदि रेस्टफुल API आपका क्या होता है? डिसेबल हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपका फोन किसी काम का नहीं बचता। तो रेस्टफुल एप्लीकेशंस के लिए आपको वेब सर्विसेज या वेब API बनाते आना चाहिए। यदि आपको वेब API का नॉलेज है तो आप मोबाइल डोमेन पे भी काम कर सकते हो और डेस्कटॉप वेब डोमेन पे काम कर सकते हो। HTTP एंड REST, आजकल यदि आप जावा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो जो जावा ने माइक्रो सर्विसेज बनाया, स्प्रिंग बूट, वो इसी के लिए बनाया। स्प्रिंग बूट किसके लिए बनाया गया है? HTTP एंड REST बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। ASP.NET API, यदि आप .NET फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ASP.NET वेब API ये भी रेस्टफुल के लिए बनाया गया है, ठीक है। वेब एप्लीकेशंस का जो आर्किटेक्चर है, जो आप कभी भी नहीं देखते हैं, वेब एप्लीकेशंस का जो आर्किटेक्चर, जैसे आप जावा पूरा सीख लेते हैं, आपको यदि पूछा जाए तो आप अपने रिज्यूम में कोर जावा, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क सब लिख देते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, MVC डिजाइन पैटर्न क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लस्टर्ड मॉडल क्या होता है, नॉन क्लस्टरिंग क्या होता है, तो आपको वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर भी पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको गिट का रिपोजिटरी, गिट तो आजकल कंपलसरी है। गिटहब का नॉलेज या बिटबकेट का नॉलेज आपको यदि है, और ये सब चीजें यदि आपके रिज्यूम में मेंशन्ड है कि आपको HTML, CSS, रिएक्ट या एंगुलर, दो में से कोई, ये दोनों सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं रिएक्ट भी सीख लूं, एंगुलर नहीं, दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक सीख सकते हैं। बैकएंड लैंग्वेज में सभी की जरूरत नहीं है, कोई एक सीख सकते हैं। डेटाबेस में आपको सभी सीखने की जरूरत नहीं, कोई एक डेटाबेस सीख सकते हैं। HTTP एंड RESTful एप्लीकेशंस के लिए आप PHP के थ्रू, जावा के थ्रू, .NET के थ्रू, जिससे आपको बनाना है उससे आपको बनाते आना चाहिए। इसकी प्रोग्रामिंग अलग होती है। रेस्टफुल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग अलग होती है, क्योंकि इसमें JSON का डेटा रिटर्न होता है। JSON जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, मैंने एक वेब सर्विसेज क्रिएट करके रखी है PHP के अंदर /वेब सर्विसेज, दिस वन। अब ये वेब सर्विसेज मैंने बनाई है। अब यदि मुझे registration.php, ये एक सर्विसेज है, ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? ये JSON रिटर्न कर रहा है। अब इस URL को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं।
मतलब मुझे यदि रजिस्टर्ड यूजर्स देखना है तो मैं इसको एंड्रॉयड में यूज कर सकता हूं, इसको मैं जावा में यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये जेएसओन है और जेएसओन एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं अपन रेस्ट एपीआई। रेस्ट मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले सोप चलता था, दो टाइप के एपीआई होते हैं, सोप और रेस्ट। सोप जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। सोप का मार्केट अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब कोई बहुत कम कंपनी सोप पे काम करती है। अब 90% कंपनीज में जो वेब सर्विसेज क्रिएट होते हैं वो रेस्टफुल में होते हैं, रेस्टफुल एप्लीकेशंस, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट रेस्टफुल सर्विसेज इन जावा, आप नेट में सर्च करना, आपको पूरा मिल जाएगा। हाउ टू क्रिएट रेस्टफुल एप्लीकेशन इन पीएचपी, आपको पीएचपी मिल जाएगा। तो रेस्टफुल एप्लीकेशंस आपको बनाते आना चाहिए। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कौन सी है 2021 में या 2020 में? सबसे पहले नंबर पे चल रहा है, यदि आपको फ्रंट एंड सीखना है तो आप रिएक्ट जेएस सीखिए, एंगुलर जेएस सीखिए, व्यू जेएस सीखिए, इनमें से कोई एक। ठीक है, जेक्यूरी, एम्बर जेएस, बैकबोन, ये जेएस अपने आप में ही इतने बड़े सोर्स हैं कि आप यदि दो बोलोगे मैं रिएक्ट और एंगुलर दोनों सीख लूं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप रिएक्ट जेएस, अभी सबसे टॉप में चल रहा है रिएक्ट जेएस, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में भी दो पार्ट है, एक रिएक्ट और एक रिएक्ट वेब। अब रिएक्ट जेएस क्या है, सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। ये फेसबुक कंपनी ने अपने कोड को फिक्स करने के लिए, फेसबुक के अंदर के एप्लीकेशन को फिक्स करने के लिए उसने एक कोड बना डाला और उस कोड को बोलते हैं रिएक्ट। तो रिएक्ट किसने बनाया? फेसबुक ने बनाया, और ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है आज के डेट में। और आप जितने भी आज के डेट में न्यूली डेवलप एप्लीकेशंस देखोगे उन सब में रिएक्ट ही यूज हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा आइडियल फ्रेमवर्क है और सबसे बेटर यूज है। रिएक्ट का यूज हम किसके लिए किया जाता है? यूआई बनाने के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, और सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है एंगुलर। एंगुलर जो है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन अब ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है, ये थोड़ा ओल्डर अप्रोच हो गया है। किसके थ्रू? रिएक्ट के थ्रू। बाकी एंगुलर भी, एंगुलर किसने बनाया? गूगल कंपनी ने बनाया था, और इसका मेन काम क्या था कि टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ाना। ठीक है, लोगों को सबसे ज्यादा वेब एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस का इशू आता था, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा मतलब कंज्यूम होता था वेब एप्लीकेशंस में। दैट्स व्हाई एंगुलर हैज इंप्लीमेंटेड। व्यू जेएस ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, और ये बहुत सरल है रिएक्ट और एंगुलर के कंपैरिजन में। आप इसको भी सीख सकते हो, व्यू जेएस। ठीक है, व्यू जेएस की साइट मोस्टली चाइना की जो वेबसाइट्स हैं उसमें ज्यादा यूज होते थे। अलीबाबा का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ी B2B कंपनी है। ठीक है, 9gag, रियोटस, जियोमी, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके अंदर का जो आपको एप्लीकेशन यदि ओपन करोगे तो इनमें क्या यूज हुआ है? व्यू जेएस। जेक्यूरी तो आपने सुना ही होगा, 2006 में रिलीज हुआ था। एम्बर जेएस 2011 में यूज हुआ था। ये भी बहुत ही बेटर फ्रेमवर्क आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। इसको आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो एम्बर जेएस का, और वेब में भी यूज कर सकते हो। बैकबोन जेएस, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फ्रेमवर्क ऑफ आउट देयर। बैकबोन जेएस अलाउज यू टू डेवलप सिंगल पेज। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के 1000 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। 1000+ लाइब्रेरीज हैव बीन डेवलप्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में एक या दो लाइब्रेरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा लाइब्रेरी है। तो उनमें से कौन सी लाइब्रेरी आपको सीखना चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी आपको नहीं सीखना चाहिए, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जावास्क्रिप्ट की ये जो 6 लाइब्रेरीज हैं वो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, और उनमें सबसे टॉप मोस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट को ही या जावास्क्रिप्ट के अंडर में ही बनाया गया है। अब बैकएंड टेक्नोलॉजी फॉर पाइथन। बैकएंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? जैसे आपको ये तो फ्रंट एंड की बता दिया मैंने। अब बैकएंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या आना चाहिए? पाइथन प्लस जैंगो या रेस्टफुल एपीआई आप सीख सकते हो, पाइथन प्लस पिरामिड सीख सकते हो, पाइथन प्लस फ्लास्क सीख सकते हो, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट क्या है? पाइथन प्लस जैंगो है। और इसमें सबसे ज्यादा अभी बैकएंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पोजीशन पे यदि देखा जाए तो पाइथन प्लस जैंगो प्लस रेस्टफुल एपीआई का ही मार्केट है। जावा, यदि आपको जावा, जैसे बहुत सारे जावा का ही नॉलेज, जावा ही सीखना चाहते हैं, तो यदि आप जावा के अंदर भी यदि जाना चाहते हो फुल स्टैक में, तो आप जावा प्लस स्प्रिंग एमबीसी और हाइबरनेट को आप बैकएंड टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो, या जावा प्लस स्प्रिंग बूट प्लस हाइबरनेट यूज कर सकते हो। यदि आप पीएचपी बैकग्राउंड के हैं और आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है पीएचपी के थ्रू, तो आप कोर पीएचपी प्लस रेस्टफुल वेब सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर प्लस रेस्टफुल वेब सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। बैकएंड टेक्नोलॉजी फॉर .NET, आप यदि .NET का नॉलेज रखते हैं तो आप ASP.NET MVC, ASP.NET MVC, वेब एपीआई, लिंक्यू, इनका नॉलेज रख सकते हैं।
ASP.NET Core प्लस वेब एपीआई का नॉलेज भी आप रख सकते हैं। अब ये तो हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसे फुल स्टैक है जो पैकेज में, जैसे मीन, आपने नाम सुना होगा मैन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो मैन मतलब जो मीन बोलते हैं जिसको, तो मैन जो है आपका, मैन में एम का मतलब मोंगोडीबी, ई का मतलब एक्सप्रेस जेएस, ए का मतलब एंगुलर जेएस और एन का मतलब नोड जेएस। मतलब मैन का यूज करके भी आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। यदि आपको मोंगोडीबी डेटाबेस का नॉलेज है, एक्सप्रेस जेएस का नॉलेज है, एंगुलर जेएस का नॉलेज है और नोड जेएस का नॉलेज है, तब भी आप एक फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। इसको मेन स्टैक भी बोलते हैं या फुल स्टैक भी इसको बोल सकते हैं। यदि आपको, क्योंकि इसमें सब चीजें हो गई, फ्रंट एंड भी हो गई, बैक एंड भी हो गया, नोड जेएस आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये सर्वर का भी हो गया। एक्सप्रेस जेएस क्या करता है, सर्वर कम्युनिकेशन करता है, सर्वर से कम्युनिकेट कराने का काम करता है। यदि आपको मर्न का नॉलेज है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस का नॉलेज है, तो भी आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। इट इज अ मोस्ट पॉपुलर फुल स्टैक डेवलपर्स, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। अब पॉपुलर डेटाबेस फॉर 2021, कौन कौन से डेटाबेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है 2021 में? MySQL मैंने आपको बताया, पोस्टग्रे, मोंगोडीबी, ओरियनडीबी। मतलब डेटाबेस का नॉलेज भी आपको, ये सभी डेटाबेस में से कोई भी, डायनामोडीबी जो है ये अमेजोन ने लॉन्च किया है, कॉचडीबी आपने बहुत सारों का नाम भी नहीं सुना होगा, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सभी डेटाबेसेस हैं जिनमें से कोई एक, सभी नहीं सीखना है आपको, कोई एक डेटाबेस आप सीख लो। इसमें भी आपको सभी नहीं सीखना है, आप या कि मीन सीख लो या मर्न सीख लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जावा का नॉलेज होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डॉटनेट का नॉलेज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पीएचपी का नॉलेज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी एंगुलर का नॉलेज होगा। तो यदि इनको एंगुलर का नॉलेज है वो अपने आप को मीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको रिएक्ट का नॉलेज है वो अपने आप को मर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको जावा का नॉलेज है वो अपने आप को जावा फुल स्टैक के लिए, मतलब आपको उसके लिए आप डिजाइनिंग का, मतलब ये कि रिएक्ट का यूज कर लो या कि रिएक्ट का ऐड कर लो और MySQL ऐड कर लो, तो आप जावा फुल स्टैक भी बन सकते हो। तो आप अपने करंट टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एड ऑन करके एज अ फुल स्टैक डेवलपर्स बन सकते हो और फुल स्टैक में वर्क कर सकते हो। तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द फुल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के सेशन में मेरा मेन कंसर्न यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि फुल स्टैक डेवलपर्स क्या होता है और किस तरीके से हम फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए अलग अलग प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो फुल स्टैक का है। अब मैं आपको ये भी क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जैसे आपको कोई भी कंटेंट्स पढ़ना है, तो जिस तरीके से आप जावा टी पॉइंट या ट्यूटोरियल पॉइंट यूज करते हो, वैसे ही shivaTutorials.com करके मैंने अपना खुद का एक इसी टाइप का एक लर्निंग ट्यूटोरियल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप इसके अंदर जाकर के जो भी टेक्नोलॉजी में आपको सीखना है, मतलब इसमें मैंने पूरे कंटेंट्स आपको मतलब दिए हुए हैं। जावा यदि आपको सीखना है तो जावा का पूरा इन नॉलेज आपको डेप्थ में मिलेगा, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। एडवांस भी है क्या XML है इसमें आपके, इसमें XML तो नहीं है, पर XML को आपको अब इतनी जरूरत नहीं है। आपको यदि एंड्रॉइड में जाना है या XML की रिक्वायरमेंट अब इतनी ज्यादा नहीं है। XML जो है ना वो इंटरनल यूज हो रहा है आज के लिए, ठीक है। XML आपको किस पर्पज से सीखना है? सर मैं एक्चुअली एंड्रॉइड पे वर्क करता हूँ। एंड्रॉइड पे जो XML यूज होता है वो XML आपको एंड्रॉइड में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड्रॉइड एक्चुअली वो डिजाइनिंग के लिए है, एंड XML का यूज वहाँ पे डिजाइनिंग के लिए, लेआउट बनाने के लिए होता है, ठीक है। XML नहीं, एंड्रॉइड जरूर मिल जाएगा आपको, एंड्रॉइड मिल जाएगा। कोड मिल जाता था सर। किसका बेस्ट रहता। किसका? सर XML डिजाइनिंग के लिए बोल रहा हूँ सर। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए? नहीं, डिजाइनिंग के लिए नहीं, एंड्रॉइड मिल जाएगा आपको। इसमें एंड्रॉइड का पूरा सेशन है, इसमें आप देख सकते हो एंड्रॉइड ट्यूटोरियल, ठीक है। एंगुलर है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, आप इससे पूरे कंटेंट्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, इसमें भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, यदि आता है तो आप यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन में जाओगे तो यहाँ पे जो हम लोग लाइव इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जैसे क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा आने के बाद भी आप नहीं बता पाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस स्किल है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज के सेशंस भी हैं, वो अभी आप देख सकते हो, और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। यदि आपको कोई डाउट पूछना, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अब आपको कोई डाउट आ गया, जैसे हाउ टू कॉल वेब सर्विसेज आर API इन एंड्रॉइड,
अब आपको इसमें कोई डाउट आ गया तो इसके अंदर आपको पूरा कमेंट सीट भी मिल जाएगी, यहाँ पर आप कमेंट्स भी कर सकते हो। यदि आपको कोई डाउट है तो इसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा, इसके लिए पूरी टीम है जो आपको रिप्लाई भी इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा और आप अपने वर्क को आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग, जैसे एंड्रॉइड के जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे पाइथन हो गया, ASP.NET, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी हमने अलग से प्रिपेयर किया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सैंपल, अब देखो इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन नहीं होता, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन बोलते हैं ना, इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता। इंटरव्यू क्वेश्चन का मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आपको एक डमी इंटरव्यू क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू मतलब ही होता है कि जो चीज आपको पता नहीं है, जो चीज आपको इंस्टेंटली पता कराना है, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते, लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं और लॉजिक आपको इंस्टेंटली ही लगाना होता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चंस का एक सैंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ बताया है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे जावा यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कुछ वीडियो सेशन भी बताया कि जावा इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो ये चीज़ें भी आप सीख सकते हैं, इनको आप अच्छे से ब्रशअप कर सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि जितने भी स्टूडेंट्सों ने पार्टिसिपेट किया, जिनको कोई क्रॉस क्वेश्चन है, जिनको करियर रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, करियर रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्योंकि फुल स्टैक को मैं यदि आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाऊंगा तो इतने कम समय में मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। आपको ही पता है कि मुझे फ्रंट एंड बैक एंड और इन सबको माइग्रेट करने के लिए ही 3 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि इसीलिए बता रहा हूं कि जब मुझे एक आर्टिकल क्रिएट करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, तो सीखने के लिए आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फुल स्टैक बोलना आसान है, फुल स्टैक इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। ओके, या सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या सर, ये आपका ये जो ट्यूटोरियल है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। बट सर उसमें तो परचेस के लिए बोल रहे हैं वो। इसमें सर मैंने अभी यहाँ पर सिवा करके ट्यूटोरियल से सर उसको मैंने ओपन किया, बट वो परचेस के लिए बोल रहा है। कौन सा परचेस? siva-tutorials.com आप सर्च किया आपने? हाँ सर मैंने इस पे किया है, सिवा ट्यूटोरियल्स कॉन्सेप्ट डिजिटल ऐसे कुछ नहीं, करके। वो अलग है, वो अलग है, वो पैड है, siva-tutorials.com बोल रहा हूँ। ये URL आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन में? हाँ सर, हाँ इस URL की बात कर रहा हूँ। डिजिटल लर्निंग अलग है, ठीक है, वो तो यूडेमी टाइप का टाइप है। मैं आपको ये ट्यूटोरियल्स की बात कर रहा हूँ, इट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल में जो भी आपके वीडियोस हैं वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से भी पूरी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। साथ में यदि आपको हमारे यहाँ ऑफलाइन इंटर्नशिप भी होती है, यदि आप चाहो तो यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन भी आकर के आप चाहो तो यदि आपको कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। और किसी को कोई यदि आपको डाउट है फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर आपने वो पाइथन वाला दिखाए थे ना जी, फुल स्टैक का, उसकी स्लाइड दिखा दीजिए ना एक बार। जी, जस्ट आई विल मैनेज पाइथन। दिस वन पाइथन के अंदर पाइथन प्लस जैंगो प्लस रेस्टफुल एपीआई ये सबसे मोस्ट डिमांडेड है। और अभी रिसेंटली पाइथन ने एक और फ्रेमवर्क लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड पिरामिड। ओके, पिरामिड इज फॉर वेरी हाई स्केल एप्लीकेशंस। इफ यू वांट टू क्रिएट वेरी हाई स्केल एप्लीकेशंस then also you can go with pyramid also. And Flask is for lightweight applications. If you are creating small applications or medium scale applications, then you can go with Flask. Okay, if you have any doubt, any students or any questions regarding this, then you can ask me. सर आपका गिटहब पे किस नाम से अकाउंट है सर? In GitHub, my account is github.com/shiva-concept-solution. Concept solution. Okay sir, okay, thank you. Okay, everything you can get from shiva-concept-solution.com. You can simply go there. Each and every linked applications can be opened from there. Okay, you can simply go there and online certification tutorials you can go with siva-tutorials.com. If you want to go on my GitHub accounts, then GitHub. Go with YouTube channel, then YouTube channel. All these things you can implement here. तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के मतलब ट्यूटोरियल्स के अंदर तो आपको 500 प्लस ट्यूटोरियल्स आपको इसके अंदर आर्टिकल्स मिलेंगे और हर टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो जेक्यूरी हो, चाहे वो हाइबरनेट हो, स्प्रिंग एम्बेसी हो,
मतलब पूरा फुल स्टैक इसमें इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, गिटहब में भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी सैम्पल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। 232 रिपोजिटरीज आई हैव बीन क्रिएटेड एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन मैनेज। आपको यदि प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से प्रोग्राम डाउनलोड करके, जैसे आप जेंगो बैकग्राउंड से हैं तो आपको जेंगो बैकग्राउंड्स के भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यदि आप जावा बैकग्राउंड के हैं, यदि आप PHP बैकग्राउंड के हैं, यदि आप एंगुलर JS बैकग्राउंड के हैं, नोड JS बैकग्राउंड के हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। सर मेरे को AI के बारे में जानना था, मैं AI की फील्ड में जाना चाह रहा था। आप AI के फील्ड में जाना चाहते हैं तो देखो, AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे बेटर अप्रोच है वो ये है कि पहले आपको कोई ना कोई लैंग्वेजेस में, सबसे पाइथन लैंग्वेज में तो आपको इसको पहली प्रायोरिटी मानता हूँ। आपने कोई लैंग्वेज सीखी हुई है इसके पहले? सर बेसिक नॉलेज है मेरे को सभी लैंग्वेजेस का, मतलब जो अपन कॉलेजेस हाँ, में मतलब पढ़ते सबसे हैं। बेटर अप्रोच आपको पाइथन से मिलेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर जो AI का इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसमें NLP, NLPM के जो पैकेजेस होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है, न्यूरैन पैकेजेस जो होते हैं, वो बहुत आसानी से आपको पाइथन में मिल जाएगा। तो आप पाइथन प्लस AI इज अ बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट इट। और AI का करियर जो है वो अच्छा है, बट ये है कि AI के लिए आपको मतलब थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको AI का जो करियर है वो यहीं मिल जाएगा। आपको बेंगलोर या पुणे, जो मेट्रो सिटी है, अभी वहीं पर AI का ज़्यादा यूज़ है। यदि आप बोलोगे कि मुझे इंदौर के अंदर AI में जॉब मिल जाए, या भोपाल में मिल जाए, या कि अहमदाबाद में मिल जाए, तो ऐसी सिटी में अभी आपको नहीं मिलेगी। आपको पुणे या बेंगलोर में जाकर के ही AI का डिमांड है, वहाँ पे ज़्यादा है। अभी यहाँ पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पहले उसमें पाइथन अच्छे से सीखना पड़ेगा। पाइथन प्लस कहीं AI। पर। ठीक है, पाइथन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको AI यदि में क्या क्या सीखना चाहिए, यदि आपको इसके बारे में देखना है तो इसका पूरा हमारे पास कंटेंट भी है कि AI में आप ये चीज़ें, जो कंपनी में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको मैनेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप यहाँ पे कोर्सेस में जाइए, आपको यहाँ पे AI का भी कंटेंट डिलीवर हो जाएगा कि AI में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इसके लिए भी हमारे वेबसाइट पे मेंशन है ओके सर। दिस वन। ठीक है, ML प्लस AI, मतलब मशीन डेटा साइंस। देखो, ये पूरा एक स्टेज होता है। पाइथन सीखो, पाइथन के बाद मशीन लर्निंग सीखिए, मशीन लर्निंग के बाद AI सीखिए। तो AI के अंदर जो है NTL के पैकेज, नेचुरल NLP, NTL के ANN, ठीक है, ये दीज थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। आप यहाँ से पूरा कंटेंट देख सकते हो। ओके, ओके सर। और किसी को कोई डाउट, किसी भी टाइप का फुल स्टैक से रिलेटेड यदि आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके मैडम, Thanks again for joining us today, sir, and hope we will join with या soon again with ओके, you या to ओके, gain knowledge with you. डेफिनेटली। Thank you, sir. Thanks to all ओके, students too for attending this webinar. Thank you all. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.